Hi friends, welcome on this panel discussion that is related to HPCL CBT. So in today's discussion, what we will talk about, we'll talk about the cutoffs for different branches, the paper, CBT, difficulty level, and what can be the safe score. We will be discussing about that, when the result is going to come, and based upon previous year's information, how you can prepare for group task and interview, what are the challenges in the preparation, how your PDA mentors will help you, and till your result comes, how your PDA mentors are going to help you in your dedicated WhatsApp groups in which you are already members. And if you are not, then the link is attached with this video, and you can watch that particular, you can join those particular WhatsApp groups. So HPCL GT is over, that is 3rd of May, and overall, if I tell you friends, IBPS conducted this exam, and many students were thinking before exam that IBPS is going to conduct difficult exam, and non-technical part is going to be difficult, quant, reasoning, English is going to be difficult. But contrary to our belief, जो हमें लग रहा था, ऐसा नहीं हुआ. जो आपके नॉन टेक भी है उसमें कुछ पोर्शन बहुत आसान था कंपेयर टू लास्ट ईयर. लाइक शुभ मैम विल टेल यू, इंग्लिश वाज इजियर, रीजनिंग वाज लेंथी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाज डिफिकल्ट, बट टेक्निकल वर मोर और लेस ऑन द सिमिलर लाइन. कुछ ब्रांचेस में इजी, कुछ ब्रांचेस में डिफिकल्ट. इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपका आईएएस था, जो आईएएस वाला था कंप्यूटर्स का, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे. सारी ब्रांचेस में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वर मोर. So that is what the common perception is about this paper. And as you know, HPCL is going to recruit junior executive officer and officer. So the cutoffs, the safe score, and everything is different for JEO and officer. So we are going to talk about these two separately. Watch the entire video. It is going to be very, very helpful to you, all of you. And more important than what you have done, what score you are going to get, you are going to pass or not pass. More important than that is how you are going to utilize next 1 month till your result comes, how you can utilize and prepare yourself so that if you are in the selected category, then you very comfortably prepare for interview and GT. So I start first with you, Govinda sir. This time number of seats are 700. That means double than previous number of seats. So JU and officer are together, all the branches are together, and the exam was conducted by IBPS. So I'll discuss with you, like what do you expect if IBPS has conducted this exam, and you were telling me that IBPS conducts it in a different way, result वैसे नहीं निकलता जैसे पहले निकलता है. तो पहले तो उसके बारे में आप बताएं सर कि IBPS रिजल्ट कैसे निकलता है. सी IBPS का सर नॉर्मली जैसे क्या होता है, दिस सेल एग्जामिनेशन, इसका भी रिसेंटली रिजल्ट आया है, तो इसमें कोई रिस्पॉन्स शीट नहीं आती है. मींस वी आर डिस्कसिंग फॉर द सेल ओनली. मे बी किसी और एग्जाम के लिए वो वैसा अलग करता हो, लेकिन बिकॉज दिस पब्लिक सेक्टर, दिस इज आल्सो पब्लिक सेक्टर, बोथ आर महारत्ना पब्लिक सेक्टर्स. सो सेल के केस में क्या होता है, IBPS कंडक्ट करवाएगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, आफ्टर दैट दे विल डायरेक्टली कम विद द शॉर्टलिस्टिंग. नो रिस्पॉन्स शीट, नो आंसर की, नो चैलेंज, nothing is there. So on the similar lines, we can also expect for the HPCL same, that okay, there are chances that they do not give you the response sheets, they do not give you the option to challenge the questions, and also they will come up with the direct shortlisting of the candidate directly. So this may happen, but it will happen or not, nobody knows, because IBPS is conducting this HPCL examination first time. So this is from the IBPS, that how they recruit normally. अच्छा, अब सर कितना टाइम मिलता है वंस योर एग्जाम, 3rd मई को एग्जाम हुआ, अब रिजल्ट, पहले स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन, रिजल्ट कब तक आएगा? सर नॉर्मली सर इसका जो पैटर्न है HPCL का, जैसे अगर हम पिछले 3 साल के पैटर्न को लेंगे, पहले साल 2 साल तो वो कोविड के कारण कुछ डिस्टर्बेंस था, अदरवाइज फ्रॉम द लास्ट 3 years दे आर रेगुलरली फॉलोइंग द सेम पैटर्न. रिटन एग्जामिनेशन, व्हेन देयर एडवर्टाइजमेंट विल कम, आफ्टर दैट दिस मच ऑफ नंबर ऑफ डेज एग्जामिनेशन विल बी देयर, रिटन एग्जामिनेशन. अब रिटन एग्जामिनेशन इज ऑलरेडी ओवर. If you see the last 3 year pattern, it is 40 days. 40 दिन के अंदर अंदर वो लोग शॉर्टलिस्टिंग दे देते हैं. और जैसे ही शॉर्टलिस्टिंग आएगा, the very first interview will be after 7-8 days. 7-8 दिन के बाद पहले बच्चे का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं. Then it depends upon the number of candidates. उसके हिसाब से वो जो it may take 10 days, 15 days, 20 days to complete whole process. So this is, you can expect it, if it had happened on 3rd May, then you can expect near to 13th or 15th of July their shortlisting. Okay, so many students are not even aware what the pattern is of group task and GD or GT or interview. So if you can very briefly tell कि pattern होता क्या है?
Sir, CBT is there, written examination is there. After that, they will go for the, who will be getting shortlisted, they will go for the group task. And group task is eliminating. Okay. So if they do not perform well in the GT, they will not be able to perform, they will not be able to participate in this interview. Okay. And if their interview went well, they will not be able to participate in this medical round. So GT is eliminating, interview is eliminating, then in the last, your document this medical will be there. So in the end, they will come with the merit list. Okay, these much of candidates have been selected. So I think we will also discuss about that, how many candidates go for the next round for the interview, how many candidates, number of multiple for the, because they normally call around 5 to 6 times the number of vacancies. So 5 से 6 टाइम वो बुलाते हैं, फिर उसके बाद GT होगा, एलिमिनेट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, एलिमिनेशन, देन लास्ट इज द योर मेडिकल. Friends, I want to add one thing here. 50% get eliminated in GT stage. 50%. जैसे suppose in one particular day, 24 students have gone in 3 groups for GT. 8 to 9 candidates go for GT. So 24 अगर गए हैं तो 12 लोग GT पास करेंगे, 12 वापिस आ जाएंगे. अब जो आगे 12 गए उसमें से भी 50% इंटरव्यू पे एलिमिनेट हो जाएंगे. 6 will go to medical. And medical में you will get rejected only if you have some medical issue. Otherwise you will pass medical. Once you pass medical, whether you are in HPCL or not, that will depend upon your score, your CBT marks, your GT marks, your interview marks, everything will be added. But as per my understanding, 95% chance है कि you will pass. If you pass medical, you will get selected in HPCL also. So 50% elimination at GT, 50% elimination at interview. That makes GT and interview preparation so crucial and important for all of you. Now Govinda, and one thing more I want to add, sir, कि ये जो भी सर ने बोला, that is 50% एवरेज. ऐसा भी होता है कि पूरे के पूरे ग्रुप एलिमिनेट हो जाते हैं और पूरे के पूरे ग्रुप सिलेक्ट हो जाते हैं. ऐसा भी होता है कि पूरे ग्रुप में से एक ही कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है. ऐसा भी होता है कि पूरे ग्रुप में से एक ही कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ. सो व्हाट टाइप ऑफ स्किल दे आर गोइंग टू चेक इन द ग्रुप टास्क, दैट मैटर्स. उसके लिए मेंटर्स आर बेटर, दे विल एक्सप्लेन यू कि किस तरीके का रिक्वायरमेंट होता है ग्रुप टास्क के लिए, इंटरव्यू के लिए, एंड देन इन द लास्ट मेडिकल. तो सर ने बोला कि अगर कुछ मेडिकल इश्यू है तभी आप रिजेक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं. लेकिन ग्रुप टास्क और इंटरव्यू के अंदर आपका स्किल टेस्ट होगा, आपका नॉलेज टेस्ट होगा, आपका पर्सनैलिटी, बिहेवियर, और जो स्किल रिक्वायर्ड है इस जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली आपका असेसमेंट होगा. अच्छा, अब वी विल बी डिस्कसिंग विद द मेंटर्स एंड विल मेक असेसमेंट अबाउट सेफ स्कोर एंड कट ऑफ स्कोर. सो कट ऑफ स्कोर इज, फ्रेंड्स, वेयर यू पास, एंड सेफ स्कोर व्हेन वी रिलीज, दैट मींस द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल पास इज वेरी हाई. जो स्कोर हम रिलीज करेंगे, you understand, friends, that is our guess, intelligent guess. We are not commoner, we are the teachers, we are the mentors who have taught you and who are following this pattern of HPCL for the last couple of years. So we will be giving you a number and I'll be asking each mentor about cutoff and safe score. So what is cutoff? Like at which you pass. And what is safe score? 5 to 10 marks more than cutoff can be safe from our side. But as I told you, friends, our guess can be wrong because this time IBPS has not given you a paper, so it can be blind guess also. So we are just discussing here for your reference. So many of you can give comments in our video and that will give you more idea. Now there are 3 categories of the students. One, who are sure that they will not pass. Second, who are sure that they will pass. And third, who are at the border, they are not sure. हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. And many students are calling you. I especially those are calling जिनको लगता है पास हो जाएंगे, बिकॉज पिछली बार भी हुए थे लेकिन पॉइंट से बाहर निकल गए. तो व्हाट इज योर एडवाइस टू सच स्टूडेंट्स, दोज हु से सर कब तैयारी करें, कब हम योर पीडीए के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं? अब इसमें सर 2 केसेस हैं. एक ऐसा केस है कि जिसमें स्टूडेंट ने पिछली बार हमारे साथ तैयारी नहीं किया, फॉर एग्जांपल, और एक ऐसा केस है जिसमें स्टूडेंट ने तैयारी हमारे साथ किया लेकिन स्टिल रिजेक्ट हो गया. सो जिसका रिजेक्शन हुआ, तैयारी किया, उसको पता होगा कि मेरे को बहुत ज्यादा और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है. यही पार्ट एक लैग करता है, अदरवाइज और कोई पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि प्रैक्टिस, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी से ही आपको मेंटर फीडबैक देते हैं कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, आप नॉलेज पार्ट पे, बिहेवियरल पार्ट पे, और कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट का स्कोप है, वो प्रैक्टिस के साथ होता है. तो अब जो 3 कैटेगरीज बताई हैं, ऑब्वियसली जिसको लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, दैट इज द आउट ऑफ द रेस. लेकिन अब जिसको लग रहा है कि मेरा हो सकता है, क्योंकि जिन बच्चों ने पिछली बार भी पेपर दिए या प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए और इस बार पेपर उन्होंने अटेम्प्ट किया, दे नो कि यस मेरे चांसेस हैं, सो दे कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सी, आप अभी स्टार्ट करेंगे, बाद में स्टार्ट करेंगे, चार्जेस आर गोइंग टू रिमेन द सेम. बट इफ यू वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट, देन ट्राई टू ज्वाइन. इफ यू आर गेटिंग इट कि मेरा हो जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दैट इज नॉट एन इशू. आई थिंक कल स्टूडेंट्स कल को ज्वाइन भी कर गए HPCL से रिलेटेड. सो जिसको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल. स्टार्ट गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंट, स्टार्ट गोइंग फॉर द योर मॉक सेशन, यू कैन स्टार्ट दैट.
अब जो बॉर्डर लाइन वाले केस हैं, अब बॉर्डर लाइन वाले केस ऐसे होते हैं सर, वही है कि एक नंबर इधर एक नंबर उधर। तो अब बॉर्डर लाइन वाले केस है तो या तो आप मेरे से कुछ डिस्कशन कर सकते हैं कि सर करूं ना करूं, लेकिन फाइनल कॉल आपको लेना है कि सर ज्वाइन करें या ना करें, अभी स्टार्ट करें या बाद में स्टार्ट करें, ये फाइनल कॉल आपको लेना है। लेकिन यस, इफ यू वांट टू डिस्कस यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ये जो नंबर है ये मेरा ही नंबर, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि सर मेरा इतना का बन रहा है कि मैं स्टार्ट करूं ना करूं। इन दैट केस आई विल डिस्कस विद यू अबाउट योर ब्रांच, अबाउट योर कैटेगरी, लास्ट ईयर कट ऑफ फॉर दोज कैटेगरीज, उसके हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन आई मे गिव यू सम एडवाइस कि आप अभी स्टार्ट करो या वेट कर लो, क्योंकि नॉर्मली बॉर्डर लाइन जो नेगेटिव की तरफ रहते हैं, मैं नॉर्मली उनको बोलता हूँ कि यू जस्ट वेट फॉर द शॉर्टलिस्टिंग टू बी आउट। लेकिन जिसको मेरे को लगता है कि है तो बॉर्डर लाइन है लेकिन पॉजिटिव साइड के हैं, इन दैट केस आई एडवाइज देम ओके यू जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मेरा एडवाइस यही है सर तीनों बच्चों के लिए। ओके एंड फ्रेंड्स लेट मी टेल यू वन थिंग, रिफंड नहीं होता है योरपीडिया के ऊपर, बिकॉज वो एक टेक्निकल ट्रबल्स आती हैं उसके बाद, बिकॉज वी हैव टू पे जीएसटी एंड एवरीथिंग टू गवर्नमेंट। सो you please take this decision very carefully, whether you want to join or not. And another thing, as I told you, if you are in doubt then WhatsApp ग्रुप पे तो हमारा वो कंटेंट शेयर होता ही है, आप उसको देखते रहें। एंड नंबर 2, अगर आपका नहीं होता है बट स्टिल यू आर रेडी कि नहीं भी होगा तो मेरे को तैयारी तो करनी है, मेंटर्स के साथ टेक्निकल स्नैप लगाएंगे, एचआर लगाएंगे, वो सब लगाएंगे, तो यू कैन प्रिपेयर दैट। बट देन इफ यू ज्वाइन एंड डोंट क्वालिफाई, डोंट एक्सपेक्ट रिफंड, वो होता नहीं है योरपीडिया में, तो बहुत से स्टूडेंट्स इस तरीके से करते हैं। so that creates a trouble for the entire group. So इसमें गुरविंदर सर, when this result will come, तो कितना टाइम मिलता है स्टूडेंट्स को रिजल्ट आने के बाद और जीटी वगैरह स्टार्ट होने के बीच में? सर जिस दिन रिजल्ट आता है ना, ये नॉर्मली का ट्रेंड है, वही 7वें और 8वें दिन से पहले कैंडिडेट का स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी। लेट अस सपोज द रिजल्ट इज कमिंग ऑन, लेट अस सपोज 15th ऑफ जून, हाँ। सो अराउंड 23-24 के आसपास इनका जो पहले स्टूडेंट का जीटी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी। और नॉर्मली जो इनका ट्रेंड है वो ये है कि जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती हैं उसका पहले आता है, ये भी इनका पैटर्न है। और जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होती हैं उनका बाद की तरफ आता है। ओके, ये है पैटर्न इनका। बाकी अबाउट द जेई और ऑफिसर पैरेलल चलेगा या कैसे चलेगा, अब लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड सर, बिकॉज ऑफिसर का पेपर अलग हुआ था जबकि एडवर्टाइजमेंट कॉमन थी। ऑफिसर का पेपर हैपेंड ऑन 16th ऑफ अगस्त, जेईओ ऑफिस रिजल्ट में एग्जाम कंडक्टेड इन सितंबर, तो उसका शॉर्टलिस्टिंग भी थोड़ा लेट आया था लेकिन आ गया, बहुत ही नजदीक था। तो अब इस केस में वी हैव टू वेट बिकॉज फर्स्ट टाइम ये ऐसा है क्योंकि सेम डे पे एग्जाम हुआ है। तो अब इसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा, कब इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो मेरे को लगता है एक वही पैटर्न फॉलो करेंगे जिसमें मिनिमम होएगा वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर जिसका ज्यादा होएगा उसका बाद में होगा। सो सिंस आईबीपीएस हैज कंडक्टेड दिस एग्जाम, आपने जो 40 डे का एक विंडो दिया था, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टीसीएस वाज कंडक्टिंग, IBPS is conducting, so this 40 days will be more or less, or how will it change? मेरे को लगता है सर ये जो अर्जेंसी है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट की तरफ से होता है कि एचपीसीएल अगर बोलेगा कि इतने दिन में करना है वो दे विल डू। ओके, अब स्टील अथॉरिटी की बात करें, आई थिंक दे टुक अराउंड 4 months ओके टू गेट द शॉर्टलिस्टिंग। लेकिन अगर आप सेल का पिछली बार जब रिक्रूटमेंट हुआ था सेम पैटर्न वाज देयर। तो अब ये मेरे को लगता है कि ये एचपीसीएल की तरफ से होगा कि हमें इतने दिनों में करना है, बिकॉज अर्जेंसी एचपीसीएल को होगी, आईबीपीएस को अर्जेंसी नहीं होगी। सो 40 नहीं होगा तो या मे बी ये 30 हो सकता है, मे बी 50 होगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम है। लेकिन 40 मिनिमम डेज तो सर इतना करेंगे सर। सो वी आर फॉलोइंग दिस एचपीसीएल रिक्रूटमेंट पैटर्न सिंस 2021 से, जब से स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, और मेरे को लगता है कि ये 1-2 महीने के अंदर करवा लेते हैं। सो यू बी रेडी फॉर दैट। अब मैं एक एक करके मेंटर्स से थोड़ा डिस्कस करता हूँ। जतिन सर, आपका सिविल का है, सो सिविल इंजीनियरिंग जेईओ एंड ऑफिसर, व्हाट इज द परसेप्शन, कैसा पेपर था सर? जेईओ का पेपर बच्चे जैसे स्टूडेंट का फीडबैक आया है वहां से ये पता लगा कि मॉडरेट टू इजी की तरफ बता रहे हैं बच्चे। बस पेपर थोड़ा लेंथी था, गिवन टाइम में पेपर सोल्व नहीं हो रहा था, बट जिसकी तैयारी अच्छी थी, जिसने सब कुछ पढ़ा हुआ था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस आए थे, तो वो इजीली कर सकता था। बट ओवरऑल पेपर की एनालिसिस यही हुई है, जो क्वेश्चन उन्होंने बताए हैं वहां से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी उनको याद थे, उनके बेसिस से तो यही लग रहा है कि जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू इजी की तरफ था जेईओ का। ऑफिसर का पेपर सर फिर भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे ही है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस बताए हैं उन्होंने उसके हिसाब से भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चंस थे, बल्कि जेईओ के कंपैरेटिवली यहाँ पर पेपर थोड़ा सा आसान लग रहा है मेरे को ऑफिसर का पेपर। ठीक है, क्वेश्चन भी डायरेक्टली आसान है, बट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, इसमें टाइम लग रहा है। अगर आपको जैसे डिफ्लेक्शन के फॉर्मूलेज में अगर आपको WL की क्यूब की जगह WL की बार 4 लिख दिया वहां पर आपने गलती से, तो क्वेश्चन पूरा गलत है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर मॉडरेट लेवल था, क्योंकि उसमें हर एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले लगाने पड़ रहे हैं मोस्टली। बट जेईओ में आपको डायरेक्टली टर्म्स हैं, डायरेक्टली उस टर्म्स का आंसर पता है, तो वो कंपैरेटिवली मॉडरेट टू इजी जा रहा है जेईओ का, और ऑफिसर में मॉडरेट लेवल पे आ रहा है सर। और जैसे आप सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं, तो जेईओ का अगर मैं सेफ स्कोर बताऊंगा सर, ये 115 to 125
115 से 125 के बीच में दैट इज सेफ सेफ स्कोर है सर यहाँ पर। कट ऑफ कैन बी 110 टू हाँ, कट ऑफ के लिए हम बता सकते हैं कि 110 के कट ऑफ दैट इज फॉर जाएगा जूनियर एग्जीक्यूटिव। हां, जेईयू के लिए। ओके ऑफिसर के लिए अगर मैं सेफ स्कोर बताऊं तो सर ये 130 प्लस माइनस 5, अगेन 125 टू 135, 130 एवरेज 130 एवरेज प्लस माइनस For 5 officer. फॉर ऑफिसर। कट ऑफ ऑफिसर के लिए हो सकता है कि 122 से 120 इतने कट ऑफ जाएगा सर। So friends, this safe score and all is on the basis of, जैसे as you know, Yourpedia provided you know free content also, so thousands of students were connected with the mentors. So कुछ बच्चे ना अच्छे, जैसे हमें पता होता है एज अ टीचर, हमें पता होता है ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। So when you ask them that स्कोर कैसा रहा, पेपर कैसा रहा, तो वो जो नंबर देते हैं बच्चे कि साहब मेरी बड़ी अच्छी तैयारी थी और मैं पेपर करके आया और मेरे को लगता है मेरे 135, और हमने कितने बच्चों से सुना, यू विल एग्री विद अस दैट स्टूडेंट्स ने हमें बहुत सा फीडबैक दिया होगा कि सर मेरे तो इतने बनेंगे इतने बनेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं, मतलब यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, लेकिन वो बताते हैं मेंटर्स को। जब वो बताते हैं मेंटर्स को साहब इतना आया होगा, मेरे को इतना लग रहा है, उसके बेस पे सेफ स्कोर को मेंटर बोलता है। अगर हमने सुना ही नहीं है, बहुत से बच्चों के मुंह से सुना 140 प्लस 140 प्लस, तो हम बोल सकते हैं 140, लेकिन हमने सुना नहीं है, तो उसके बेस पे मेंटर आपको सेफ स्कोर बताएंगे। सो कट ऑफ इज एट विच यू विल क्वालिफाई एंड सेफ इज where the probability of your getting selected is very high. That is a safe score. So typically safe score is 10 more than cutoff score what we think of. So now I'll also ask you, Jatin sir, about the preparation of the interview for civil engineering. सर इंटरव्यू के लिए जो HPCL के इंटरव्यूज हैं उसमें तो जैसे मैराथन की अगर बात करें, जैसे आपने बताया भी है कि जो मैराथन होगा सिविल इंजीनियर्स के लिए वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। Okay. मैं टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो अगर एक बार बच्चा मैराथन को देख लेगा, कवर कर लेगा, तो मोर देन सफिशिएंट है उसके लिए। तो बस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए बट एक स्टूडेंट पूछते हैं कि एचआर और टेक्निकल में से कितना पेपर आता है, तो टेक्निकल कितना आता है, आपको क्या लगता है, आप मेंटर हैं इसके? टेक्निकल का सर वेटेज फिर भी कम रहेगा, लेकिन एचआर का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहेगा। तभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप टेक्निकल में एक बार मैराथन को सुन लोगे ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप पैनल के क्वेश्चन को टैकल कर सको। सो फ्रेंड्स, मैराथन इज नथिंग बट 5-7 hours ऑफ वीडियोस फॉर मेन सब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मे बी फ्लूइड मैकेनिक्स और अदर सब्जेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। बट मैराथन आप सुनोगे 5 घंटे में, आपको पता लग जाएगा बेसिक क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और HPCL में एवरेज टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लिटरली नहीं पूछे जाते, बहुत ही कम पूछे जाते हैं। बट देयर आर स्टूडेंट्स जिनसे पूरा टेक्निकल भी चला है, सो यू मे बी इन एक्सेप्शन ग्रुप, राइट? सो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। सो अगर आप मेरे से पूछेंगे सर टेक्निकल पूछा जाता है, नो। अगर आप मेरे से तैयारी करनी है, हाँ तैयारी करनी है, वो उसके लिए आपको मैराथन रिवाइज करने हैं। एंड देन एज पर योर बैकग्राउंड, लाइक टेक्निकल क्यों पूछा जाएगा, यू आर वर्किंग इन L&T, यू आर वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और आपने इंट्रोडक्शन में अपना बता दिया कि साहब मैं अभी L&T में काम कर रहा हूँ, और एक मेंबर को इंटरेस्ट आ गया आपके इस प्रोफाइल पे, तो आपसे टेक्निकल पूछना स्टार्ट कर देगा। सो यस, टेक्निकल कैन आल्सो बी आस्क्ड डिपेंडिंग अपॉन, एंड Yourpedia mentors will give you preparation for technical also and HR also, though largely questions are HR. Over to you, Taslim sir, for electrical. थैंक यू सर। सर जैसे कि मेरी बच्चों से बात हुई है, तो सर इसमें बच्चों ने क्वेश्चंस मुझे बताए जो मेरे पास भी है यहाँ पर। तो सर अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो जैसे कुछ सर क्वेश्चंस होते हैं किसी सब्जेक्ट में जो कन्वेंशनल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ नेटवर्क में, वो थ्योरम से क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में SCR से पूछेगा। तो सर जो एक कन्वेंशन होती है किसी भी पेपर की, सर उसे फॉलो किया गया है। तो सर इसीलिए मैं कहता हूं सर कि पेपर डिफिकल्ट साइड नहीं था, और बच्चों के भी फीडबैक से यही पता लगा है कि इजी टू मॉडरेट था पेपर। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में SCR, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, और इसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे ही सर बाकी भी सब्जेक्ट हैं जो मुझे क्वेश्चन से ये आइडिया लगा कि डिफिकल्ट साइड नहीं था पेपर। जी सर। ओके, सो कुछ कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में सर? सर सेफ स्कोर जो अगर मैं JEO की बात करूं तो सर 120 ±5 आप लेकर चल सकते हैं। Okay. और ऑफिसर्स के लिए सर 125 ±5। ओके, एंड तस्लीम सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोर सब्जेक्ट्स कौन से जिनके मैराथन इनको देखने चाहिए? सर अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिकल में कोर सब्जेक्ट, सर सबसे पहले सर नेटवर्क एनालिसिस, ओके, फिर दूसरे नंबर पे सर पावर सिस्टम, ओके, और तीसरे नंबर पे आता है सर इलेक्ट्रिकल मशीन। और उससे सर सही बात ये है सर, ये सारे ही हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं सर, और हमने सर बिल्कुल बेसिक से उसे कवर किया है। अगर बच्चा उसे देख लेता है तो बहुत कंफर्टेबल फील करेगा। और वैसे भी सर हमने CBT से पहले भी मैराथन सेशन लिए थे, तो काफी बच्चों से मेरी बात हुई है, बच्चे बोल रहे हैं उन्हें उनसे बहुत एडवांटेज मिला है। तो मैं तो सर उन बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा जिनका स्कोर सेफ स्कोर के आसपास आ रहा है या उससे कुछ कम भी आ रहा है सर, तब भी उन्हें तैयारी कर लेनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस ऑल मैराथन्स आर recorded form में you will get it, and Yourpedia is the only platform I believe who has the mentors are mentoring students from Jammu and Kashmir to Tripura में exam has come, to Tamil Nadu, to Kerala, Cochin Shipyard.
So entire India across length and breadth, and our mode of teaching is English in such a way that even students from Hindi belt, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, they will also understand. So marathons are recorded in such a way that we have made a justice of the subject. And when we are teaching, like if I'm teaching strength of material, I'm teaching in Hindi and English in such a way, whether you are from South India या आप North India से हैं, आपको subject समझ आएगा, you will get it. So you will not face any trouble. So watch that and your concept will be clear. So राजीव सर, I think आपकी सबसे बड़ी बटालियन है सर मैकेनिकल इंजीनियर्स की. Yes sir. 200 बच्चे लेके बैठे हैं आप. So what is your take on the paper? सर मैकेनिकल का जेईओ और ऑफिसर में बहुत डिफरेंस था. अगर मैं जेईओ का देखूं सर, तो वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्टली लाइक जेई का जो पेपर आता था उस टाइप का वन लाइनर क्वेश्चन था. न्यूमेरिकल वाज वेरी लेस, बहुत कम न्यूमेरिकल था. तो जेईओ का पेपर सर इजी टू मॉडरेट मैं बोल सकता हूँ, बट शिफ्टेड टू इजी. लेकिन सर ऑफिसर में जस्ट इसका अपोजिट हुआ है. जितना स्टूडेंट्स मेरा बात हुआ है, कुछ ने बताया सर वो गेट में किया था, सेम क्वेश्चन उसको वहां दिखा, बट गेट में कैलकुलेटर था, यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं था. ऐसा बहुत क्वेश्चन था सर जो वहां पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व था. ओवरऑल मैं देखूं ऑफिसर, तो मैं मॉडरेट टू हार्ड बोल सकता हूँ. चूंकि न्यूमेरिकल ज्यादा था, बच्चे से कम क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, तो मैं लिटिल बिट हार्ड की तरफ ही टिल्ट बोलूंगा. सेफ स्कोर की बात करूं सर जेईओ में, तो किसी स्टूडेंट के 115 118 से नहीं, कट ऑफ की मैं बात करता हूँ, तो 115 से ऊपर जो भी है ये लड़का 115 के अप्रॉक्स आ सकता है जेईओ. और सेफ के लिए सर एक 120 से प्लस कुछ भी है तो बहुत सेफ जोन में है. ऑफिसर में सर मैं 5 नंबर कम रखना चाहूंगा. 108 110 के अप्रॉक्स उसका कट ऑफ जा सकता है, बट 112 15 से ऊपर कुछ भी मार्क्स है, ही विल बी इन द वेरी सेफ जोन. और मैं बोलूंगा उसको कि आप आगे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. 130 प्लस तो पक्का उसका हो जाएगा. ये तो श्योर है सर, अगर मैं इतना बोलने से श्योर है तो बहुत सेफ है. गुड, वेरी नाइस. सो सेम आई थिंक मैराथन मैकेनिकल के भी पढ़े हुए सर. हाँ, मैकेनिकल के साथ यहाँ बहुत ज्यादा मैराथन पढ़ा है, उसको देख ले. लेकिन सर मैं ये भी सजेस्ट करूंगा, अदर देन दैट एक बार इसको सर पर्सनल भी इंटरेक्ट करना चाहिए. मान लीजिए कोई लड़का कहीं जॉब कर रहा है, अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट में, तो हो सकता है उससे कुछ अलग क्वेश्चन भी पूछा जाए. तो अगर ये इंटरव्यू गाइडेंस लेगा तो और भी ज्यादा हेल्पफुल होगा. Obviously. Over to you, Shubhaman. So you are the happiest mentor. बहुत ही आसान पेपर. So IBPS conducted the paper. It was supposed that difficult आएगा. Right. So how did you manage to have very simple paper, man? So it was a conventional approach, as sir also told, कि जो हम टॉपिक्स डिसाइड करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, स्पॉटिंग एरर्स हैं, आपके जंबल्ड है, आरसीज हैं, पेट क्वेश्चंस रहे हैं. बट मेजर सरप्राइज बस कि वोकैबुलरी बहुत कम आई. बिकॉज ऑफ दैट आई वुड से कि इजी वाली साइड पे चला गया. बिकॉज स्टूडेंट्स फील अगर वोकैबुलरी से ज्यादा पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो उनको डिफिकल्टी लगता है. कई बार एक आधा क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगता है. बट राइट नाउ एवरेज स्टूडेंट एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग मोर देन 13-14 मार्क्स. इवन आई विल से कि मैंने बहुत बच्चों से इंटरेक्टेड विद देम, देयर वर हार्डली 1 or 2 स्टूडेंट्स दे टोल्ड कि मैम मॉडरेट लगा because we were in a panic situation. वो उनका आ गया कि we were not well because of the weather season, we were in a panic situation. But other than that, every person from every branch, be it for JE officer, सभी ने यही बोला है कि English was the easiest one with respect to the last year. Last year बहुत difficult था, इस बार बहुत easy था. तो 15 marks out of 17. I would say 17 out of 17 भी बहुत easily आ सकते हैं. But if we go with the high accuracy and all that, तो 14 से plus तो easily बच्चों ने बोला है कि they can score it out. कि 14 से plus से expect कि आएगा ही आएगा. Wonderful. अच्छा शुभम, you are mentor for group task and HR also. Right. So typically group task किस तरीके से होता है preparation, and उसके बारे में थोड़ा सा candidates को, because many of them have no idea about GT also, GD also, and HR or interview also. So briefly, though we will be making detailed video on that, so थोड़ा सा अगर आप briefly बता सकते हैं. So GT HPCL के group task, that is a problem which is provided to them and they have to make a mutual consensus. Like हम लोग बैठे हैं और कोई problem दी गई है तो हमें consensus से बनाना है, पर proper time में 12-15 मिनट में सबके consensus, सबकी participation बहुत difficult हो जाती है. कई बोल ही नहीं पाते हैं, they have that doubt. उसी लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. और HPCL के ग्रुप टास्क बहुत लंबे आते हैं. अगर आप IOCL के कंपेयर करोगे तो इट इज लाइक 1 लाइनर या 2 लाइनर्स. अब उतना टाइम मैनेजमेंट, आपको 10 मिनट्स मिलता है, बहुत लंबा 1.5 2.5 भी जाते हैं, तो आपको इतना लंबा GTs पढ़ने होते हैं. उसमें से कैसे क्रक्स पॉइंट निकालने हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए. और डोमेन स्पेसिफिक GTs ही होते हैं. हमने बहुत वीडियोस बताई हैं जिसमें दे आर ओनली डोमेन स्पेसिफिक. जैसे वुमेन्स सेफ्टी है, लेकिन उसके जार्गन्स, टर्मिनोलॉजीज याद करनी है. फायर एट एन एक्सीडेंट प्लेस आ गया तो आपको टर्मिनोलॉजीज याद करनी है. मतलब फिक्स डोमेन्स होते हैं,
हैं 10-15 स्पेसिफिक डोमेन्स हैं, लेकिन उस डोमेन्स में आपको ब्रेनस्टॉर्म करके कैसे जीटीज आएंगे, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको अपनी स्पेस बनानी है, एंड देयर आर सर्टेन लाइनर्स एंड टर्मिनोलॉजीज, जैसे हाउ टू इंट्रोड्यूस, हाउ टू कंक्लूड, हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू एंटर, हाइपर के भी मार्क्स करते हैं, और अगर आप कम बोलते हैं तो भी आप रिजेक्ट हो जाते हैं। सो इट्स लाइक अ सिचुएशन, डू और डाई सिचुएशन, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, सो शुभम मैम, नाउ यू आर प्लानिंग फॉर स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं एचपीसीएल के लिए, बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट दैट उनका क्लियर हो जाएगा। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तैयारी के लिए, उनके लिए आपने कैसे प्लान किया हुआ है सारा, और जो ज्वाइन अभी नहीं करेंगे लेकिन स्टिल as your PDI, you know, we are trying to help them also in the common groups, we are providing them learning content and all, so उन दोनों के लिए आप स्ट्रेटजी बताएं मैम नेक्स्ट 1 मंथ का, कि जो ज्वाइन कर रहे हैं और जो ज्वाइन नहीं करना चाहते अभी, उनको हम कैसे हेल्प करने वाले हैं। So the best thing is we have multiple documents. अगर आप Okay. GTs के बेसिस पे जाते हैं, पैनल पे जाए, अभी भी आप चेक कर सकते हैं। There will be documents related to all the PYQs, जितने भी previous year questions, PI का अगर आप बात करते हैं, GTs की बात करते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट्स को खुद से स्टडी करते हैं, सपोज 1 मंथ के बाद कोई ज्वाइन करता है, टेक एन इंस्टेंस, बट प्रेशर क्या आ जाता है, उसको पढ़ना पड़ता है। वी प्लान इट आउट कि हम दिन में 3, 4, 5 डिफरेंट GTs मिनिमम कंडक्ट कराएं, जिससे बच्चे को मल्टीपल एक्सपोजर मिले। इट कैन बी इन द मॉर्निंग 8 से स्टार्ट होकर रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक। GTs are available for every candidate, be it a working professional, be it you're a fresher, you're a college student, it can be very comfortable for you. All you have to do is you have to devote your time. आपको GTs पढ़ने भी है, हम भी रोज वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपको शॉर्ट्स में बहुत अच्छे से पॉइंट सुन के, कई बार हम सुनते हैं और बहुत चीजें रिटेन कर पाते हैं, और कई चीजें आपको अगर लगता है कंफर्टेबल है, बस उसको जार्गन्स को हाईलाइट करो, और वो लाइनिंग्स आई वुड से, और क्लासेस होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। वी हैव क्लासेस रिलेटेड टू HR, वी हैव क्लासेस रिलेटेड टू GT सेशंस, देन इट इज फाइनेंस पार्ट, डॉक्यूमेंट पार्ट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। अब क्लासेस भी आप ले रहे हैं, तो जो बच्चा मंथ बाद ज्वाइन करेगा वो रिकॉर्डिंग्स देख सकता है, दैट इज ओके। और उसको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा मैम? डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग इज देयर, द वे ही गेट द वंस ही एनरोल्स विद अस, ऑब्वियसली आपको सारा असेस मिल जाता है। द ओनली थिंग इज अ प्रेशर डिफरेंस, बिकॉज सम पीपल कैन टेक इट एंड सम पीपल फील नर्वस एट दैट वेरी लास्ट स्टेज। तो बस वही चीज है, लेकिन इस चीज का एक ही हैक है, practice is going to make you perfect. Okay. More you practice, more sessions you attend, ultimately you are going to be like, okay, I can answer at that very position. So friends, if you're confident, जो आपको सेफ स्कोर बताया मेंटर्स ने, अगर आपके उससे भी 10 नंबर ज्यादा हैं, सेफ तो हमने बताया कि जैसे सर ने बता दिया 120 सेफ है, बट यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग 135 प्लस, तो यू शुड प्रिपेयर, एंड यू नो प्रिपरेशन नेवर गो वेस्ट, तो आप उसमें हेल्प आपको हो जाएगा। मनप्रीत मैम, आई वाज वाचिंग वन ऑफ द कमेंट्स ऑन योर वीडियो दैट वाज JEO, कि मैम ने जो कराया उसमें से 20-25 क्वेश्चन यहीं से आ गए। बिल्कुल सर। सो हाउ कुड यू डिकोड दैट? सर, जो हमारी लास्ट वीडियोस हुई थी ना मैराथन में, मैंने स्टूडेंट्स को पहले ही बता दिया था कि पूरा का पूरा पेपर IBPS बेस्ड ही होगा। जब आप मैराथन सेशन लगाओगे ना, जो जो क्वेश्चन IBPS पूछ सकता है वो सभी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस होंगे ऑन दैट बेसिस। अगर किसी ने लगाई है ना, वो लेक्चर्स लगा लिए, तो उसको तो वो वहां पे जाकर तो पैनिक बिल्कुल नहीं करेगा कि हाँ क्वेश्चंस कुछ नए तरीके से आ गए, बिकॉज IBPS इज नोन फॉर क्वांट एंड रीजनिंग लेवल, गुड लेवल के लिए जाना जाता है वो तो, क्योंकि रीजनिंग में ना IBPS का फेवरेट टॉपिक है पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, बट इन द क्वांट सेक्शन उसका फेवरेट टॉपिक है DIs। हाँ, बाकी क्वेश्चंस भी आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट वो 1 मार्क के होते हैं, बट DIs से वो 3 से 5 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, अगर बैंकिंग पैटर्न को भी देखा जाए तो ऐसे ही रीजनिंग के अंदर भी 5 क्वेश्चन एक सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे जाते हैं। तो जब स्टूडेंट ने एग्जाम में देखा कि पजल्स आई हैं, बट वो 2 से 3 पजल्स हर सेट में उनको देखने के लिए मिली हैं, जिस भी शिफ्ट में उनका एग्जाम था, तो ऐसे ही क्वांट के अंदर जब उन्होंने देखा तो उनको DIs मिली हैं, 2 या 3 DIs मिली हैं। तो अगर उन्होंने स्टार्टिंग जो अपनी करी थी ना, मैंने मैराथन में लास्ट में बताया था कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये नहीं है कि जाते ही आप फर्स्ट क्वेश्चन पे शुरू हो जाओ कि यही से पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आपको पहले सबसे पहले तो वहां पे जाके अपनी स्ट्रेटेजी देखनी चाहिए थी कि क्वेश्चन स्टार्टिंग कैसे करनी है। दैट इज द की। IBPS आपसे एक्सपेक्ट ही यही करता है कि आप स्ट्रेटेजी कैसे यूज करते हो एग्जाम में, नॉन टेक पार्ट के अंदर, है ना। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये देखा कि कौन से क्वेश्चन से मैं ज्यादा स्कोर कर सकता हूँ, उस बेसिस पे उसको अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आए तो उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां पे आंसर भी होते हैं। सो अगर बात करी जाए अब क्वेश्चंस की क्वांट और रीजनिंग के अंदर, तो दोनों के लेवल जो थे वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही बोला है कि डिफिकल्ट साइड ही रहा है, बट कुछ क्वेश्चंस वहां पे इजी भी थे। आपको इजी स्कोर पहले करना था, अगर आपने वो स्ट्रेटेजी करी तो आपका क्वेश्चंस मैक्सिमम आंसर हुए हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है। अगर बात करें मोस्टली टॉपिक्स कौन कौन से आए हैं, तो हमारे अगर क्वांट के अंदर बात करी जाए ना, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, ये सारे क्वेश्चंस वहां पे थे। उसके साथ साथ में एक एडवांटेज ये थी कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी पूछे हुए गए थे वहां पे, जहाँ पे बोर्ड मार्क्स लगाना था स्टूडेंट्स को।
और अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो इन द क्वांट सेक्शन जिसने 16 to 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं विद एक्यूरेसी, उनके चांसेस बन सकते हैं कि क्वांट क्लियर होगा सेक्शन। और ऐसे ही अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग में 32 to 36 गुड अटेम्प्ट है। अगर ये स्कोर आपने एक्यूरेसी के साथ करा है ना सर, एक सीक्रेट है IBPS का, वो सीक्रेट क्या है कि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल सेक्शन में जितने भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, अगर वो सभी के सभी करेक्ट है तो आपको 1 मार्क की ग्रेस मार्क्स भी मिलती है वहां पे। ये आज सबको नहीं पता होता, बट दैट इज द की कि IBPS 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा देता है, 1 से 1.5 नंबर एक्स्ट्रा दे ही देता है अगर उसके बेसिस पे आप जाओ तो। ओवरऑल देखते हैं अब रिजल्ट क्या आता है स्टूडेंट्स का। सो फ्रेंड्स, मैम ने सीक्रेट पेपर के बाद रिवील किया पहले किया था, मैराथन में बताया था। ओके गुड। अच्छा मैम, आप जैसे शुभ्या ने 17 में से 15-17 का गेस मारा है जी। कितना ले सकते हैं आप? 34 क्वांट, 34 रीजनिंग में कुछ रीजनिंग में सर 42 क्वेश्चंस थे, पैटर्न sorry, चेंज हो गया अच्छा, था pattern लास्ट change, मोमेंट अच्छा, में जाके पैटर्न चेंज हाँ, हो गया हाँ, था। तो क्वांट के अंदर मैंने बोला जिसके 16 से 20 क्वेश्चन अच्छा। सही थे, और रीजनिंग में 42 क्वेश्चंस में से जिसने 32 to 36 किए हैं ओके, ना, उनके चांसेस हैं चलिए बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा सर। सो वेरी नाइस मैम। सो आई थिंक मोर और लेस गुरु सर हमने सारा बोल दिया। एनीथिंग व्हिच वी लेफ्ट? इसमें एक चीज और भी है सर, इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है अच्छा, कि तो टेक्निकल पहले नहीं होता था? नहीं, पहले भी था पहले, सेक्शनल अच्छा। कट ऑफ कि 85 टेक्निकल, 85 नॉन टेक्निकल। हाँ जी, सो मिनिमम आई थिंक 50% उनको Okay. स्कोर करना है। और लेट अस सपोज किसी के दोनों में से किसी भी एक पार्ट में अगर 50% से कम स्कोर हुआ और चाहे दूसरे पार्ट में उसने सारे ठीक कर दिए 85 के लिए, वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। सो सेक्शनल कट ऑफ इज आल्सो देयर। ओके सर जैसे अभी हमने सारी चीजें कवर कर ली, हाँ लेकिन इसमें 2 ब्रांचेस और हैं सर, हाँ जी, ऑफिसर IAS का और दूसरा आपका केमिकल। राइट। तो उसका कट ऑफ के बारे में, बिकॉज हाँ जी। मेंटर नहीं है आपका, डिस्कशन So, हुआ yeah. मेंटर्स के साथ, हाँ। तो उसका कट ऑफ का क्या है सर? तो गुरु सर सबसे पहले जो हमने वीडियो डाला था वो IAS का ही डाला था, क्योंकि उसका पेपर जल्दी हुआ और उसका फीडबैक भी बच्चों का जल्दी आया था। IAS में टेक्निकल वाज सपोज टू वेरी सिंपल। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे, मुकेश सर वाज वेरी हैप्पी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं था, और जैसा पढ़ाया हुआ था उसी में से सारे का सारा आया। ये मुकेश सर ने हमें बताया था। तो मेरे को लगता है सर पेपर तो आसान था IAS का। एंड जो IAS में अगर आपके 125 प्लस बन रहे हैं ओवरऑल, तो मेरे को लगता है यू आर इन द सेफर साइड, Yes. जो ये है। क्योंकि मेरे को एक रीजन ये भी लगता है सर, क्योंकि कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, अब टेक्निकल तो उनका बहुत इजी आया, हाँ अब जो नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल दे आर बेटर हाँ, एज they are कम्पेयर टू better, अदर yes. ब्रांचेस के। Yes, तो yes. क्वांट और रीजनिंग पार्ट में Yes, ज्यादा स्ट्रांग yes, होते हैं, yes. देयर आर चांसेस उसमें कट ऑफ थोड़ा Very सा true. एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस थोड़ा हाई साइड पे है। वेरी ट्रू। और केमिकल का जो मेंटर हैं उनसे सुनने में ये है कि जो आपका पेपर आया था सर, इसका जो JU वाला था वो कंपैरेटिवली इजियर था, और जो ऑफिसर हुआ था वो रिलेटिव टू प्रीवियस ईयर वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट था। नंबर ऑफ सीट्स आर लेस, Yes. नंबर ऑफ सीट्स आर लेस। सो 115 अगर आप बोलेंगे 115 प्लस JU के लिए, और 120 125 ऑफिसर के Officer लिए। के तो safe ये score हो हाँ, सकते हैं। ये केमिकल का था। बट ऑब्वियसली नाउ कट ऑफ डिपेंड्स अपॉन द पेपर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी आल्सो, एंड आल्सो ऑन द नंबर ऑफ सीट्स। केमिकल की सीट्स कम थी, तो ये इन दोनों मेंटर्स का जो फीडबैक था। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट डिटेल डिस्कशन इज ऑल अबाउट, एंड आई एम वेरी श्योर आप पास होंगे और विल प्रिपेयर। Your PDA is the most authentic, dedicated, and in-depth preparation platform for HPCL, GT, and PI. Don't miss it if you are in selected category, so that we finally get into this. All the very best. Look forward to mentor all of you. Thank you.